امیر شریعت کرناٹک دوم مفتی اشرف علی باقوی کی حیات و خدمات پر مشتمل ایک کتاب اشرف التذکار کا اجرا اتوار کے روز دارالعلوم سبیل الرشاد میں منعقد ایک پروقار تقریب میں عمل میں آیا۔ ممتاز علماء کرام، سیاسی قائدین و عمائدین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ مفتی اشرف علی صاحب کی حیات طیبہ پر کتاب لکھنے والے مولانا وسیم احمد سالک اور کتاب پبلش کرنے والے مہروز خان صاحب کو مبارکباد پیش کی گئی۔ مولانا قاری سراج الدین رئیس القرا دارالعلوم سبیل الرشاد کی صدارت میں منعقد اس اجلاس میں مفتی اشرف علی کی حیات اور خدمات کو بہترین خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مہمانان خصوصی میں رکن راج سبھا منصور علی خان، ریاستی وزیر توانائی کے جے جارج، کونسل کے چیف وپ سلیم احمد، سابق وزیر آر روشن بیگ، ریاستی گارنٹی نفاذ اتھارٹی کے وائس چیئرمین ایس آر مہروز خان، کے پی سی سی کے نائب صدر محمد عبید اللہ شریف اور دیگر ممتاز شخصیتوں نے شرکت کی۔ منصور علی خان نے اپنی خطاب میں کہا کہ مفتی اشرف علی کو وہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے والد ڈاکٹر کے رحمان خان سے مفتی صاحب کا ذاتی رشتہ تھا۔ منصور نے کہا کہ مفتی صاحب کے دل میں قوم کے لیے بہت زیادہ درد اور تڑپ تھی۔ دینی تعلیم کے ساتھ آج عصری تعلیم کی ضرورت پر بھی بات کی۔ SIR کے معاملے میں ملت کی بیداری کے لیے علماء نے جو کام کیا ہے اس کی بھی ستائش کی۔ وزیر برائے توانائی کے جے جارج نے مفتی اشرف علی سے اپنے دیرینہ تعلق کا ذکر کیا اور کہا کہ کثیر مسلم آبادی والے علاقے میں ہم آہنگی اور امن و امان برقرار رکھنے میں مفتی اشرف علی اور مولانا صغیر احمد خان رشادی کی خدمات کافی گراں قدر رہی ہیں۔ جارج نے کہا کہ ایک دوسرے کے مذہب کا اگر احترام کریں اور بھائی چارگی سے زندگی گزاریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کونسل کے چیف وپ سلیم احمد نے مفتی اشرف علی سے اپنے دیرینہ تعلق کا ذکر کیا اور کہا کہ سبیل الرشاد بے شمار قربانیوں اور خدمت کے نتیجے میں قائم ہو سکا۔ سابق ریاستی وزیر روشن بیگ نے مفتی اشرف علی سے اپنے دیرینہ مراسم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ مولانا ابو سعود باقوی اور مفتی اشرف علی کی خدمات کی بدولت معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ خطیب و امام مولانا ڈاکٹر مقصود عمران رشادی نے کہا کہ مفتی اشرف علی نے اس علاقے میں انسانوں کی اصلاح کرنے کا مرکز بنایا جہاں چمڑے صاف کیے جاتے تھے۔ مفتی اشرف علی کو بولنے اور سمجھانے کا غیر معمولی سلیقہ عطا تھا۔ عبید اللہ شریف نے کہا کہ ملت کے کسی بھی مسئلے پر مفتی اشرف علی کی فکر مندی مثالی رہی ہے۔ ریاستی گارنٹی نفاذ کمیٹی کے وائس چیئرمین ایس آر مہروز خان نے کہا کہ مفتی اشرف علی دینی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ کانگریس لیڈر CM فیض نے کہا کہ امیر شریعت مفتی اشرف علی پر لکھی گئی کتاب سے امت کو رہنمائی حاصل ہوگی۔ مولانا مفتی اشرف علی صاحب ایک ایسے شخصیت تھے جو صدیوں میں ایک بار آتے ہیں، اور میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں ہمارے والد اور مفتی صاحب کا ایک گہرا رشتہ تھا۔ ہمارے والد جب MLC یا راجیہ سبھا ڈپٹی چیئرمین منسٹر ہمیشہ مفتی صاحب کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے تھے۔ یہاں پر سے عربی کالج سے کتنے سارے حافظ قرآن مفتی پڑھ کے نکلے ہیں، لیکن مفتی صاحب کی خاصیت یہ تھی وہ ایڈمنسٹریشن بھی جانتے تھے، اتنی ہی نالج تھی۔ آپ کو وقف بل ہو یا پرائم منسٹر کا 15 پوائنٹ پروگرام ہو، ساچار کمیٹی ہو، اور مسلم پرسنل لا بورڈ جب بنا یا ملی کونسل، ہر چیز میں مفتی صاحب کا تعاون تھا اور پارٹیسپیشن تھا۔ اور آج جو ماحول ہو چکا ہے، تم اپنے اسٹیٹ کا لے لو، ملک کا لے لو، جو مفتی صاحب ہم سب کو سکھا کے گئے ہیں، نصیحت دیکھیں، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور صدیوں میں ایک ایسے اسکالر، اسلامک اسکالر، ریلیجس لیڈر آتے ہیں۔ تو اب آپ کے والد صاحب رہنمائی حاصل کرتے تھے، آج موجودہ دور میں رہنمائی فراہم کرنے کی یعنی کہ علماء کی سرپرستی ضروری ہے، تو آج موجودہ دور میں بہت ضروری ہے۔ اور مفتی صاحب کا مزاج بھی وہی تھا، سب کی سنتے، وہ کوئی بھی ان کے پاس آیا تو ان کی بات سنتے تھے، سمجھتے تھے اور مشورہ دیتے تھے، اور جب وہ سامنے ہی رہتے سلیوشن مل جاتا ہے، سب کو تسلی ہو جاتی ہے، ہاں مفتی صاحب ہیں۔ ان کا ایسا ایک عہدہ تھا، ریلیجس لیڈرشپ بھی وہ کرتے تھے اور بڑی ہی ڈگنیٹی سے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی دکھا۔ پولیٹیشنز کو آج اور پولیٹیکل لیڈرز کو
नसीहत और एक रास्ता दिखाते थे, आज उसकी ज़रूरत है। इस इदारे को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा हज़रत का, मुफ्ती साहब का। जब मैं आया था सिर्फ वही एक ही बिल्डिंग थी, लेकिन उनकी जो खाली लगातार उनकी कोशिश की वजह से आज इतने बड़े हॉल वगैरह दूसरे हॉल बने हुए हैं। और दूसरी बात जो है हर एक महीने में वो मीटिंग बुलाते थे, MLAs को, मिनिस्टर्स को, MPs को। चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ आते थे डिस्कस करने के लिए साथ। बहुत बड़ी शख्सियत थी, अमन भाईचारा शांति के लिए ख़ास तौर बहुत तवज्जो देते थे और तालीम के लिए उनका बहुत कंसर्न रहा। ही हैड ए विजन एंड ए मिशन बोथ। आज हमें बहुत याद आती है, उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है। और पूरे रियासत से यहाँ लोग आते थे और जितने भी जो मसाइल हैं उस मसाइल को लेके यहाँ डिस्कस करते थे। हमें बुलाया जाता था और हमें डायरेक्शन दिया जाता था। उस हिसाब ने बुला के बोल भी थे तो हम उनके बताए हुए रास्ते पे और जो भी हुकूमत से काम करवाता हम लोग करवाते थे। आज दारुल उलूम सबीलुर रशाद में अशरफुत तिस्कार का इजरा अमल में आया है। मौलाना वसीम अहमद सालिक रशादी ने इसको तरतीब दिया है और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सवानी उम्री पर उन्होंने एक किताब तहरीर फरमाई है जो बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं। और हमारे निहायत करम फरमा जनाब महरोज़ साहब इस पूरी किताब को छपवाने में अपने सरफ़ ख़ास को लगाया है। अल्लाह उनके माल में खूब बरकत अता फ़रमाए और उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। चूँकि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को दस्तारबंदी के मौके पर हज़रत मौलाना रियाज़ुर रहमान साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह और शहर के मुख्तलिफ़ इदारों ने मिलकर हकीमुल मिल्लत का खिताब दिया और माशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती आज़म भी रहे और माशाअल्लाह 50 साल तक बुखारी शरीफ का दर्स दिया और साथ ही साथ आप दारुल उलूम सबीलुर रशाद के मुहतमिम भी रहे और पूरी रियासत के अमीर शरीयत सानी आप रहे। और सबसे बढ़कर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम सियासी जमातों में इत्तिहाद और तमाम जितने भी मसालिक के लोग हैं उनके दरमियान में इत्तिहाद और इसी तरह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को जोड़ने के सिलसिले में बड़े फ़िक्रमंद रहते थे और उलमा में भी अवाम में भी आप काफ़ी मकबूल थे। और अल्लाह ने आपको ज़बान भी ऐसी दिया था कि उर्दू जब बोलते तो लगता था कि आप लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं और आप भी मंजूम कलाम लिखे हैं। वो गोया कि आप शायर थे, अशरफ आपने अपना लक़ब रखा और माशाअल्लाह आपने बहुत सारे 100 से ज़्यादा आपने नातों को, नज़मों को, हमदों को आपने तहरीर फरमाया और साथ ही साथ बहुत सारे मज़ामीन भी हज़रत ने लिखा। और मैं भी औज शरफ़ के नाम से हज़रत पर PhD किया हूँ और जब मैं हज़रत से ज़िक्र किया कि हज़रत आपकी शख्सियत पर मैं PhD करना चाहता हूँ तो हज़रत ने फरमाया मेरी शख्सियत ऐसी नहीं है कि मुझ पर PhD किया जाए, लेकिन हज़रत छुपे रुस्तुम थे और ज़बरदस्त सलाहियत के मालिक थे और माशाअल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त अपनी जगह में मकाम बनाया था और अवाम में भी, उलमा में भी और सियासी क़ायदीन में भी आप ख़ास से मकबूल थे। अल्लाह आपके ख़िदमात को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हम सब मिलकर हज़रत ने जो बातें पेश की हैं तो उस पर अमल पैरा हो। और मैं भी ख़ास तौर पर हज़रत से बड़ा ताल्लुक़ रखता था और हज़रत किस तरह से बोलते हैं, कैसे दर्स में आके बैठते हैं और कैसे आप उठकर चलते हैं और ऐसे मेहमान आने पर उनकी कैसी खिदमत करते हैं और उनसे कैसे बातचीत करते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने हज़रत ही से सीखा है। और माशाअल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए मशाल राह थे और ज़बरदस्त हज़रत ने खिदमत अंजाम दी है। इस पर मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि जितने भी हज़रत पर किताबें लिखी जाएँ वो कम ही हैं। मैं हमारे जितने भी अहबाब हैं, चाहे वो रशादी हों, चाहे खौज क़ासमी हों, चाहे नदवी हों, चाहे कोई और, सब में हज़रत मकबूल थे। तो इसलिए हर एक भी अगर किताब लिखना चाहें तो उनके लिए बिल्कुल मैदान खुला हुआ है, वो भी लिख सकते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह सब के दरमियान में ऐसा ही इत्तिहाद आने वाले ज़माने में बाकी रखे। आज शबीरुल रशाद अरबिक कॉलेज में मुफ्ती अशरफ अली साहब के ज़िंदगी के ऊपर एक बायोग्राफ़ी को मौलाना वसीम साहब ने लिखने का काम करे। इस किताब को पब्लिश करने का मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दिया, तो मैं अल्लाह का
बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे ज़िंदगी के अहम दिनों में ये एक दिन है बोल के मैं मानता हूँ, क्योंकि मुफ्ती अशरफ अली साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो सिर्फ कर्नाटका नहीं, हिंदुस्तान में उनकी जो गाइडेंस, जो वो गाइड करते थे कम्युनिटी को, सियासी रिप्रेजेंटेटिव्स को और एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो उनका गाइडेंस जो था, जो कौम के जो भी प्रॉब्लम्स और इशू जब आते थे उसको जिस तरीके से वो हल करते थे, खुसूसन हमारे जैसे अपकमिंग पॉलिटिशियंस, मैं बहुत बार बार उनसे मुलाकात करने आता था थोड़ी चीज़ों के ऊपर उनसे एडवाइस लेने के लिए। जिस तरीके से जो एडवाइस वो देते, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी पॉलिटिशियन और कोई भी मुसलमान, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी एजुकेशनिस्ट मुफ्ती अशरफ अली साहब के जो एडवाइस के ऊपर अगर हम ज़िंदगी करने का और ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने का अगर हम काम करेंगे तो इससे बेहतरीन ज़िंदगी और कोई नहीं होगी, बल्कि मैं मानता हूँ। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का एक अहम दिन है। इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए भी ये दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और बहुत ज़्यादा तारीख़ी दिन है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने महबूब उस्ताद, जो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल थे, अल्लाह ताला ने उनकी तारीख़, मुझे उनकी सीरत लिखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए आइडियल था, उम्मत के लिए नमूना थे। वो उनकी ज़िंदगी को जितना पढ़ेंगे, उलमा हो या तलबा हों या सियासी लोग हों या इल्मी दुनिया के लोग हों, तलबा स्टूडेंट्स हों, सब के लिए उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया में भी आखिरत में भी बेहतरीन नमूना है। वो सब के लिए एक मिसाल थे। तो इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर तरीक़े से सामने रखा जाए। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। इजरा में मुल्क के कौन कौन से हिस्सों से उलमाए कराम की तशरीफ़ आवरी? जी, हमारे रियासत कर्नाटक और इसी तरह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन तमाम जनूबी हिंद के स्टेट से हमारे हज़रत से मोहब्बत करने वाले हज़रत के शागिर्दान, हज़रत के मुताल्लिक़ीन तशरीफ़ लाए हैं। देखिए, आज के दिन नौजवान नस्ल जैसे हम लोग हैं, अमीर शरीयत दामरबद अशरफ हज़रत के साथ बहुत ही कम राब्ता था, लेकिन आज इस बुक के ज़रिए से हम लोगों को जिस हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय किए थे, वो पूरी जो इल्म हमें हासिल होगी, उनकी जो कोशिश थी कि दारुल उलूम शबीर इरशाद में जिस हिसाब से तलबा पढ़े और जितने असातिज़ा इस यहाँ पे मिल के थे कि कौम व मिल्लत और शरिया को किस हिसाब से आगे तक लेके जाने, वो कोशिश में वो कामयाब थे। अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और इस बुक के जो पीछे जिन लोग जो जुड़े हुए हैं, मौलाना वसीम साहब जो राइटर है और महरोज़ ख़ान साहब जो पब्लिशर है, और उन्होंने जो कोशिश की है, जो जद्दोजहद की है कि हज़रत की पूरी लाइफ हिस्ट्री को इसमें कैप्चर करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद है। और ये पैगाम आगे तक ले जाए। और ये क्योंकि कहीं ना कहीं कही हुई बात मिट जाती है, भूल जाते हैं, लेकिन लिखी हुई कलाम तात क़यामत तक ज़िंदा रहती है।